Hello everyone. Hello my dear little tiny tots. Okay, welcome back to the class. I think we should not take today's class. You want to learn something? Okay, so we are going to learn a new lesson. Which lesson? See, we are going to start today's chapter, new chapter. And do you know what is the name of the chapter? No, don't worry, I will tell you. See, today we are going to start a new chapter, chapter number 2. And what is the name of the chapter? You don't worry, I will say it to you. Okay? The name of the chapter is, look on board. Parts of a plant. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Parts of a plant. Parts of a plant means what? Plant parts means we will see in the chapter the parts of a plant. See, plant also has many parts: roots, stem, leaves, flowers and fruits. So in this chapter we are going to see in detail which parts flowers or plants have and what functions they perform. Okay, so without wasting much of our time, come we will start our today's lesson. Okay my dear students, without wasting much of our time, come we will start our chapter number 2. Okay, before starting the lesson, one thing my dear students, when I will read the chapter, what you will do? You will look here and there. Okay? No, you will keep your finger on the line. Why finger on the line? Because this will help you to know that where I am reading. ठीक है? ये फिंगर लाइन पे क्यों रखेंगे? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी देखने के लिए कि मैं कहाँ रीड कर रही हूँ. Okay, come we will start a chapter number 2, parts of a plant. Plants form a part of our surroundings. Now plants form a part of our surroundings. Form a part of a surrounding means जो पेड़ रहते हैं वो अपना पार्ट रहते हैं सराउंडिंग्स के. मतलब पेड़, हमारे आसपास के जो पेड़ है वो भी हमारे घर के वातावरण में या घर के आसपास के जो एरिया है उसमें हमारे को कवर कर लेते हैं. The rich variety of plants all over the world are named as the plant kingdom or plant world. Now variety of plants मतलब plants की बहुत सारी varieties है. जो छोटे छोटे plants रहते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ रहते हैं ना, उसके बहुत सारी varieties है. तो वो varieties को क्या बोलेंगे? Plant kingdom और plant world. Okay? A plant is a living thing. प्लांट क्या है? लिविंग थिंग है. कैसे लिविंग थिंग है? प्लांट को जीने के लिए पानी चाहिए, है ना, और क्या चाहिए? सन रेज मतलब सूरज की किरणें, तो वो जी जाते हैं. अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिला और सूरज की किरणें नहीं मिली तो वो खाना कैसे प्रिपेयर करेंगे? और अगर ये सब नहीं मिला तो वो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे और मर जाएंगे. सो प्लांट्स ऑल्सो अ लिविंग थिंग. It has got different parts to carry out different kinds of work. Plants के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं. ठीक है? So now we will see parts of a typical plant. अब हम ये प्लांट के जो इतने सारे पार्ट्स हैं, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है? प्लांट के पार्ट्स है. So we are going to see the parts of a plant. The entire plant portion above the soil is called shoot stem. Now the entire portion of a plant above the soil मतलब soil means ज़मीन. soil के ऊपर का जो पार्ट है पेड़ का, मतलब soil के ऊपर का जितना भी पोर्शन है प्लांट का मतलब पेड़ का, उसको हम क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम. मतलब ये देखो, ये ज़मीन है ना, ज़मीन के ऊपर क्या है? जितना भी पोर्शन है प्लांट का उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम. द पोर्शन बिलो द सॉइल इज रूट सिस्टम. द पोर्शन बिलो द सॉइल मीन्स जमीन के नीचे का जितना भी पोर्शन है, ये वाला जड़ वाला पोर्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? वी विल से रूट सिस्टम. मतलब जमीन के ऊपर वाला पोर्शन हो गया शूट सिस्टम और जमीन के नीचे वाला पोर्शन हो गया रूट सिस्टम. ठीक है? समझ में आया सबको? नाउ व्हाट वी विल सी द रूट सिस्टम. अब हम लोग कौन सा सिस्टम देखेंगे? रूट सिस्टम. रूट सिस्टम किसको बोलते हैं? जमीन के नीचे वाला पोर्शन. ओके,
The root is a part of a plant that grows into the soil. When a plant has the big root with many branches and its size, it is known as tap root system. Means हम जो ज़मीन के नीचे वाला पोर्शन है पौधे का, हम उसको देखेंगे. जिस पौधे में बहुत सारे रूट्स हैं, रूट्स मीन्स जिस पौधे में बहुत सारी जड़ें हैं, ये इसको नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं जड़ें, रूट्स. और उसके साइड को क्या हम बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम. मतलब ज़मीन के नीचे जो पेड़ की जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम. नाउ then a group of small roots are found at the base of a stem. It is called fibrous root system. Means जिन पेड़ों की नीचे जो है जड़ वो छोटी छोटी है, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम का मतलब क्या? जिनकी जड़ें छोटी छोटी सी, थोड़ी थोड़ी सी है. ठीक है, देखो ये छोटी छोटी और थोड़ी थोड़ी सी है ना रूट, तो इसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम. देयर आर नंबर ऑफ टाइनी रूट हेयर ऑल ओवर द रूट्स. द रूट आर ब्राउन, पेल ब्राउन और वाइट इन कलर. नाउ जड़ों का कलर कैसा होता है? ब्राउन, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन, ऐसे कलर का कलर रहती है जड़ों की. ठीक है, ओके. नाउ वी विल टर्न द पेज. Now we will see functions of the root. अब पहले हमने क्या देखा है? रूट का कलर देखा है, मतलब जड़ों का कलर देखा है. क्या कलर रहता है उनका? ब्राउन, लाइट ब्राउन. नाउ वी विल सी फंक्शंस ऑफ रूट. फंक्शंस मीन्स अब रूट क्या काम करती है. रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. मतलब जड़ें क्या काम करती है? जड़ें काम करती है जो प्लांट है, मतलब जो पौधा है, उसको ज़मीन से पकड़ के रखने का. अगर जड़ें मजबूत नहीं रहेगी तो पौधा हवा में उड़ जाएगा, है ना. जड़ें मजबूत रहती है तो पौधा टिका रहता है. द टाइनी रूट हेयर अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल. दिस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. मतलब ज़मीन के नीचे की जो जड़ें रहती है वो ज़मीन का जो पानी है और ज़मीन की जो नमी है वो पौधे तक पहुंचाती है. क्यों पहुंचाती है? अगर ज़मीन का पानी पौधों तक पहुंचेगा तभी तो पौधा बड़ा होगा, खिलेगा. और ये प्रोसेस को, ये प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन. ठीक है. नाउ रेडिश, बीटरूट, टर्पाइन, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, ये सब क्या होती है? ज़मीन के अंदर उगती है. ठीक है. The roots also conduct the water and mineral salts up to the leaves where the food is actually made. जब इनको ज़मीन के अंदर डाला जाता है तो इनके क्या उगते हैं? रूट्स. पहले रूट्स बाहर आते हैं, जड़ें बाहर आती है. जड़ें इनको हेल्प करती है क्या पहुंचाने में? वाटर एंड मिनरल सॉल्ट. मतलब ज़मीन में जो पानी और मिनरल सॉल्ट है वो इन सब्जियों तक पहुंचाने में हेल्प करती है. कौन हेल्प करती है? हमारी जड़ें. जड़ें मतलब roots. The roots of some plants like radish, carrot, turpine, beet and sweet potato store extra food in their roots. That is why they are swollen. मतलब ये जितनी भी सब्जियां हैं, इनकी जो जड़ है, जड़ मीन्स रूट, वो एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा फूड अपने जड़ों में, मतलब रूट्स में सेव करके रखती है. ठीक है. Now we eat these swollen roots as vegetables. और हम लोग ये जो है सब्जियां उसको कैसे खाते हैं? वेजिटेबल्स के रूप में, मतलब सब्जियों के रूप में. सब्जियों के थ्रू हमारे अंदर भी वाटर और मिनरल सॉल्ट आ जाता है. नाउ शूट सिस्टम. नाउ अभी हमने क्या देखा है? फंक्शन ऑफ रूट, मतलब रूट का फंक्शन देखा है, रूट किस तरीके से काम आता है. बट अब हम क्या देखेंगे? शूट का सिस्टम. शूट सिस्टम. शूट सिस्टम ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन, पेड़ के ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन. दिस इज द मेन एक्सेस ऑफ अ प्लांट. द टैप रूट कंटिन्यूस अबव द सॉइल एज द स्टेम. इट बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. नाउ शूट सिस्टम में हम ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे प्लांट का. अब इसमें क्या क्या रहता है? इट बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. मतलब शाखाएं, पत्ती, टहनी, पौधा मतलब फ्लावर
और फल, ये सब रहते हैं ज़मीन के ऊपर वाले पोर्शन में। द स्टेम ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट। द स्टेम्स आर टेंडर इन यंग प्लांट्स बट बिकम हार्ड एंड वुडी इन ओल्डर प्लांट्स। द टेंडर स्टेम्स आर यूजुअली ग्रीन बट द ट्रंक्स आर ब्राउन इन कलर। मतलब जो ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन है प्लांट का, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट कहाँ ग्रो होता है, प्लांट ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट, मतलब वो सनलाइट की दिशा में बढ़ता है, मतलब जहाँ से सन मतलब सूर्य की किरणें उन पे पड़ती है वो उसी दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो प्लांट छोटा रहता है, यंग प्लांट्स, ओके, दे आर ग्रीन बट एजुअली दे ग्रो अप, दे बिकम हार्ड एंड वुडी इन ओल्डर प्लांट्स। मतलब जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाएगा वो हार्ड होते जाएगा और उसका कलर चेंज होते जाएगा। ठीक है, जैसे पौधा नवा नवा बड़ा होता है वो तो ग्रीन रहता है, बट जैसे ही वो बढ़ते जाता है हल्का सा येलो, फिर बाद में लाइट ब्राउन हो जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब हम क्या फंक्शन देखेंगे, स्टेम का फंक्शन देखेंगे। स्टेम मतलब जड़ें। The stem gives support to the plant. It holds the plant erect to sunlight and air. Now जो स्टेम रहती है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है प्लांट को, प्लांट पौधे को सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट करती है, उसको पकड़ के रखती है। अगर तेज़ हवा का झोंका आया और उसने स्टेम ने पौधे को पकड़ के नहीं रखा तो पौधा क्या हो जाएगा, हवा के झोंके के साथ वो उड़ जाएगा। ठीक है, नाउ सी पेज नंबर 147. It conducts water and mineral salt absorbed by the roots to the other parts of the plant. Now it conducts water and mineral salt absorbed by the roots, मतलब ये रूट में जो सॉल्ट और पानी रहता है वो कहाँ जाता है, पत्तों में जाता है, फ्रूट्स में जाता है और फ्लावर्स में जाता है। ये प्लांट को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। ओके, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मतलब लीव्स में, पत्तों में जो खाना होता है, जो फूड होता है वो पूरे पौधे तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, स्टेम, ये जो टहनी है ना वो पहुंचाता है। There are certain stem which remains underground and the plant stores extra food there. Potato, Colchicea arabi. Colchicea means arabi. Ginger, onion and sugar cane are some of the examples. Now जड़ों में जो एक्स्ट्रा फूड रहता है, जड़ों में मतलब टहनियों में जो एक्स्ट्रा फूड रहता है वो अंडरग्राउंड प्लांट स्टोर्स, मतलब वो जड़ों में स्टोर हो जाता है जो एक्स्ट्रा फूड रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा फूड किस में रहता है, अरबी में, पोटैटो में, जिंजर में, ऑनियन में और शुगर केन में, क्योंकि ये सब ज़मीन के नीचे उगते हैं। ओके, नाउ वी विल सी ब्रांचेस। मोस्ट प्लांट्स हैव ब्रांचेस. Branches bear leaves, buds, flowers and fruits. Branches मतलब what? Branches का मतलब क्या होता है? Branches का मतलब होता है टहनियाँ। प्लांट्स में जो टहनियाँ होती है उसमें क्या लगा रहता है, leaves, flowers and fruits. Branches मतलब पेड़ के या पौधे के टहनियों में क्या क्या लगा रहता है, पत्ते, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये सब लगा रहता है। Now leaves. Most plants have green leaves. The leaves are green due to the presence of a green coloring material or pigment known as chlorophyll. अब plants का कलर ग्रीन ही क्यों रहता है, किसी का ब्लू क्यों नहीं रहता, किसी का पर्पल क्यों नहीं रहता, ग्रीन ही क्यों कलर रहता है, मैं बताती हूँ। ग्रीन कलर इसलिए रहता है क्योंकि पत्तों में जो पिगमेंट रहते हैं, पिगमेंट मतलब पत्तों में एक टाइप का कलरिंग मटेरियल रहता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के वजह से पत्तों का कलर ग्रीन रहता है। ओके, लीव्स डिफर इन देयर शेप एंड साइज. द लीफ इज द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ अ प्लांट.
prepares its own food called starch by a process called photosynthesis। मतलब हर पौधे में पत्ते रहते हैं और पत्ते मेन इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। कौन सा इम्पॉर्टेंट काम करते हैं? रसोई का, क्योंकि सबकी रसोई में खाना बनता है ना, तो प्लांट का रसोई है पत्ते। पत्ते प्लांट का खाना बनाते, पर खाना कैसे बनाते हैं? पत्ते ऐसे खाना बनाते हैं क्योंकि पत्तों में स्टार्च रहता है। क्या रहता है? स्टार्च। स्टार्च हेल्प करता है उनको खाना बनाने में, जो प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? पत्तों का खाना बनाने को प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल टर्न द पेज। सो फंक्शंस ऑफ लीफ। अब हमने रूट का फंक्शन देखा, स्टेम का फंक्शन देखा, ब्रांचेस का फंक्शन देखा, जैसे जड़ का, टहनी का और पत्तों इसका जड़ों का फंक्शन देखा। अब हम किसका फंक्शन देखेंगे? लीव्स का। लीव्स मीन्स पत्तों का। लीव्स प्रिपेयर स्टार्च। लीव्स प्रिपेयर स्टार्च मीन्स लीव्स खाना प्रिपेयर करते हैं पौधों का। ठीक है, लीव्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। लीव्स कैसे सांस लेती है? स्टोमाटा से। स्टोमाटा उनके अंदर एक चीज़ रहती है जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, जिसके वजह से वो सांस ले पाते हैं। Some leaves store extra food as in cabbage, lutein and spinach। मतलब कोई कोई जो लीव्स है जो एक्स्ट्रा फूड अपने अंदर स्टोर करके रहते हैं। कौन से? जैसे पत्ता गोभी हो गई, पालक हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जो फूड है ना वो अपने अंदर स्टोर करके रहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी फ्लावर्स। हमने जड़ देख लिए, रूट देख लिए, टहनियाँ देख लिए, पत्ते देख लिए। अब किसकी बारी आई? फ्लावर्स की। Most plants have flowers. Most flowers have good smell. They become fruits later on. Now, ज़्यादातर छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं उनको फ्लावर्स रहते हैं, ज़्यादातर फ्लावर्स रहते हैं। और फ्लावर्स बाद में क्या टर्न कर जाते हैं? फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट। कोई कोई फ्लावर फ्रूट बन जाता है। ठीक है, नाउ वी विल सी फ्रूट्स। अब हमने फ्लावर्स देख लिए, फ्लावर्स के बाद हम देखेंगे फ्रूट्स को। फ्रूट्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। एनेबल फ्रूट्स हैव डिफरेंट टेस्ट। सीड्स डेवलप इनसाइड द फ्रूट। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। नाउ फ्रूट बहुत ही अलग अलग शेप्स के और साइज़ के रहते हैं। बहुत सारे फ्रूट का शेप छोटा रहता है, बहुत सारे फ्रूट का शेप बड़ा रहता है। जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये बड़े रहते हैं। बट कोई कोई फ्रूट का शेप छोटा रहता है, जैसे ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स का शेप छोटा रहता है ना। सो सम फ्रूट्स हैव सीड्स। कोई कोई फ्रूट में सीड होता है, जैसे एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, उसमें छोटे छोटे सीड्स रहते हैं। ओके, बट सम have only one seed or only a few seeds, for others have many seeds। कोई फ्रूट में कम सीड मतलब कम बीज रहते हैं, बट कोई फ्रूट में ज़्यादा सीड मतलब ज़्यादा बीज रहते हैं। जैसे आम में बीज ही नहीं रहते और एप्पल में थोड़े थोड़े बीज रहते। बनाना यानी केले में बीज नहीं रहते। पोमोग्रेनेट यानी अनार में बीज रहते। और पपाया में छोटे बीज रहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी सीड्स। अब हम बीज देखेंगे। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट्स। सीड कहाँ है? फ्रूट्स के अंदर रहते हैं, इनसाइड रहते हैं। दे कंटेन फूड फॉर बेबी प्लांट। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। द सीड्स आर स्कैटर्ड एंड टेकन अवे बाय विंड, वाटर, एनिमल और पीपल। वी सो द सीड्स इन द सॉइल टू ग्रो न्यू प्लांट्स। Seeds help in the reproduction of a plant. Now seed कैसे फ्रूट्स के अंदर रहता है? सेव रहता है। सेव मीन्स वो सिक्योर रहता है। कैसे? क्योंकि वो फ्रूट के अंदर, फलों के अंदर रहता है। पर ज़्यादातर फल जब गिर के सूख जाते हैं तो उनके जो सीड्स रहते हैं वो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं। जैसे विंड, हवा का झोंका आया तो इधर उधर उड़ गए, पानी आ गया तो पानी के साथ बह गए, एनिमल्स ने खा लिया और बचे कुचे पीपल यानी लोगों ने खा लिया। वी सो सीड्स इन द सॉइल टू ग्रो न्यू प्लांट्स। मतलब हम बीज को ज़मीन में बो करते हैं, मतलब गाड़ते हैं न्यू प्लांट बनने के लिए। सीड्स हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट।
सीड्स किस में हेल्प करते हैं हमें? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन मतलब एक फ्रूट का सीड हम ज़मीन में गाड़ दिए, फिर वहाँ से एक और एक नया प्लांट बनेगा, फिर वो प्लांट का जो फल रहेगा उसमें से सीड गिरेगा, फिर दूसरा प्लांट बनेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट। मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed this chapter here. So my dear students, here we have completed our second chapter, parts of plants. So what you have learned in this chapter? We have learned various parts of plants such as root, stem, leaves, flowers and fruits. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़े? स्टेम यानी कि टहनी के बारे में, रूट्स यानी कि जड़ों के बारे में, लीव्स यानी कि पत्तों के बारे में, फ्लावर्स यानी कि फ्लावर्स के बारे में, और फ्रूट्स के बारे में, और फ्रूट्स के सीड्स यानी बीज के बारे में। तो आज हम लोग बहुत कुछ लर्न कर लिए। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज सेकंड चैप्टर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ नोट्स। मैं नोट्स का पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगी। सो यू विल कंप्लीट योर नोट्स। ओके, योर नोट्स शुड बी कंप्लीटेड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आप अपने हैंडराइटिंग को एकदम नीट और क्लीन रखना है। ओके, so stay safe, stay home, stay healthy. I'll see you in the next video next time. Till that time, stay. Okay, bye bye.